اچھا جی، پہلے یہ دیوار پہلے باتیں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ دیوار گر گئی تھی تو آپ کو پتہ چلا. یہ دیوار گرائی اور الحمدللہ دیوار تو بن گئی ہے، لیکن اس پہ پہلے 3 دن ملبہ میرے ساتھ ایک بندہ لگا اٹھایا. تو ایک کامنٹ تھا مٹی کی دیوار ہے، تو مٹی کی دیوار کے جو مزدوری ہے نا مٹی کی دیوار پہ، یہ 30,000 لگ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ اینٹ لگتی ہے، اس کے ایرے میں جو پکی اینٹ لگائی ہے وہ بھی ریموو کی ہے، اس میں سے بھی پکی اینٹ نکالی ہے اور ادھر سے بھی پکی اینٹ نکالی ہے. تو یہ 3 دن مستری لگے اور 3 دن میں نے ملبہ اٹھایا. ایک میرے ساتھ بندہ لگا، تو 30,000 اس کی مزدوری تھی. نیچے پکی اینٹ لگائی ہے اور سیمنٹ لگایا اس دیوار کے ساتھ پانی نہ جائے. ٹوٹل مل ملا کے یہ خرچہ 37,000 پہ چلا گیا ہے. تو چلو اللہ خیر کرے، دیوار تو رکھ لی ہے. یہ آپ سب بہن بھائیوں کو انتظار ہوگا کہ دیوار گر گئی تھی تو اس کا کیا بنا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیر خیریت سے ہیں، جہاں رہیں خوش رہیں ہمیشہ. جی ہماری دعا رہے گی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ہماری دلی دعا ہے. اچھا، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی. بات گھر اجاڑنے تک جا پہنچی ہے. اب جو ہمارے بہن بھائی یہ نہیں مانتے کہ تعویذ کیا کچھ کرتے ہیں، تو تعویذ وغیرہ یہ جادو وغیرہ بہت کچھ کر دیتا ہے، اور میرے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، یہ شروع سے چل رہا ہے اور شروع سے میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کام شروع سے چل رہا ہے. جب رافیہ اور میری شادی ہوئی تو رافیہ کو ڈپریشن کا مسئلہ تھا. پہلے ہم 4 سال 5 سال ڈاکٹروں پہ بھاگتے رہے اور شروع سے یہ ہمارے اوپر تعویذ ہو چکے تھے. تو ہمارا نیا چینل اٹھا تو وہ چینل بھی ہمارا بیٹھ گیا. یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے رہے کہ بھئی یہ کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو ہم نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ سب بہن بھائیوں کو دعائیں دی ہیں، الحمدللہ بسم اللہ سے ویڈیو شروع کی ہے اور اللہ کا نام لے کر جو بھی بات کی ہے ویڈیو میں کی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی. تو یہ جو پہلی شرارت ہوئی تھی ہمارے چینل پہ، تو یہ بھی اسی کا نتیجہ تھا، جادو ٹونے کا. اور پھر 5 سال ہم نے ڈاکٹروں پہ دھکے کھائے، تو کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، اب ہم اسلام آباد گئے تو ایک بہترین ڈاکٹر پہ رافیہ کو چیک کرایا، معروف ہاسپٹل، شاید آپ نے نام سنا ہوگا. تو اس سے بڑا ہاسپٹل ہی نہیں ہے اسلام آباد میں. تو وہاں سے چیک اپ کرایا تو کوئی دوائی بھی نہیں لگ رہی. جب انسان کو کوئی دعا نہ لگے تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بھئی جادو ٹونا ہو گیا ہے. تو جادو ٹونا اتنا عام ہے پاکستان میں، اور غریب لوگوں میں تو بہت زیادہ عام ہے. ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. آپ لوگ باہر رہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی اوورسیز پاکستانی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آپ لوگ ہمیشہ پاکستانیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب ہمیں تکلیف میں دیکھتے ہیں آپ، تو اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، آپ ہمیشہ سلامت رہیں. لیکن میرے بہن بھائیوں، اس بات کو مانو کہ جادو بہت بری چیز ہے. اب رافیہ چارپائی پہ لیٹی رہتی ہے اور یہ بے بس ہے، مجبور ہے. کبھی کبھی یہ خوش بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوشی اتنی زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی، 2-4 دنوں کے لیے ہوتی ہے، 5 دنوں کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ خوشی نہیں ہوتی. لیکن جب ہم لاہور پہ تھے تو ڈاکٹروں کا مسئلہ تھا، ڈاکٹروں پہ پھر ہماری بہن اللہ پاک خوش رکھے باجی سنبل اقبال کو، انہوں نے رافیہ کا علاج کروایا. پھر باجی بہت سی بہنوں نے کروایا، میں کس کس کا نام لوں. اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اللہ پاک ہمیشہ انہیں خوش رکھے جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور علاج کروا کے
वो भी थक गए। कनाडा से हमारी बहन है जिन्होंने स्पेशली तौर पे इलाज करवाया, महमूना बाजी, तो वो भी सारे थक गए और सब बहुत से लोगों ने मदद की हमारी, इतनी मदद की। आप सब बहनों ने बहुत ज़्यादा मदद की, भाई शबीर अंजम ने बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत से लोगों ने हमारी मदद की। लेकिन ये जो जादू टूने का चक्कर होता है, इसमें इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, ऊपर नहीं जा सकता। और मुसलसल जब दीवार गिरी तो मुसलसल मैं 5 रातें जागता रहा, उधर बैठा रहा, क्योंकि अंदर कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। कुत्ते यहाँ बहुत ज़्यादा फिर रहे होते हैं, परिंदों को नुकसान ना पहुँचाएं। ये मसले, ये टेंशनें, ये एक टेंशन नहीं, टेंशनें बनी ही रहती हैं। तो अब हालत यहाँ तक आन पहुँची है कि राफिया अब अजीब सी बात करती है, चारपाई से भी नहीं उठ सकती और मुझे कहती है कि अब मुझसे चला भी नहीं जाता और उठा भी नहीं जाता। तो मेरी समझ से बाहर हो गया है, ये पता नहीं क्या हो गया है, अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है। तो मेरी समझ से बाहर हो गया है कि भाई क्या करें, हम समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पहले जादू पता नहीं कितने लोगों ने मिलकर किए हुए हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि कितने लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर जादू किए हुए हैं, कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें, किस साइड पे जाएं। जितने भी ये होते हैं, क्या नाम है, जादू टूने वाले लोग होते हैं, इनसे भी दम करवा लिया। खुद भी रोज रात को आयतें लगी होती हैं, दिन को आयतें लगी होती हैं। आप सब कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना, रुपये को आप अपना सूरह अल बकरा को बना लें। तो हम दिन में 2-2, 3-3 बार ये चीज़ें सुनते हैं, लगाते हैं। सब कुछ जो और भी नई चीज़ सामने आती है वो भी लगाते हैं। घर में जन्नत नज़र आती है, बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे घर में हैं, समझ नहीं आती। प्लास्टिक वाली टंकी लीक हो गई थी, और लीक कहाँ से हुई, ऊपर से पता नहीं किसी ने उसके अंदर सुआ मारा है, क्या हुआ क्या है। ये ड्रम जो मैंने नया लिया था, अभी साल भी नहीं हुआ, बल्कि अभी साल हुआ होगा इस घर में आए हुए, तो वो लीक हो गया। तो वो तो मेरी समझ से ही बाहर हो गया कि लोगों के 5-5 साल से पड़े हुए हैं, तो पता नहीं ये क्या हो रहा है। अब राफिया की हालत भी इतनी ख़राब है कि राफिया जो ऐसी अजीब सी बातें करने लग पड़ती हैं, तो मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि राफिया पता नहीं ये बातें क्यों कर रही हैं। जिसके पास भी गए हैं उसने यही कहा है कि भाई आपके ऊपर ना काला इल्म है। तो काला इल्म जो होता है पता नहीं बार बार करते रहते हैं या किस हिसाब से कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। बस आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से निकाले। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां, इतनी ज़्यादा मुसीबतें, परेशानियां हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बस आखिर में आपसे यही कहूँगा कि आप जितने भी बहन भाई हैं, आप हमारे हक में दुआ किया करें ताकि अल्लाह पाक राफिया को सेहत दे। अब ये वीडियो बनाते हुए लेट ही नहीं रहती, क्योंकि कई कमेंट ऐसे आते हैं कि भाई वो लेटी हुई है और आप वीडियो बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो ऐसे कमेंट आने की वजह से तो मैं राफिया को कहता हूँ, राफिया कोशिश करो उठ के बैठ जाओ। फिर लोग बातें करते हैं, बातें तो वही लोग करते हैं जिनको, शायद ये वही लोग होंगे जिन्होंने हमें टारगेट किया हुआ है, लेकिन चलो उनकी बातों से भी तो बचना है। तो बहुत अजीब परेशानी में हम फंसे हुए हैं। उधर गए थे बाहर में, राफिया को लेकर गया था कि चलो कुछ इसकी तबीयत ठीक हो जाए। कुछ लोग कहते हैं
बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई दरिया पार कर जाओ तो असर ख़त्म हो जाता है। लो जी, हमने 5 दरिया पार किए, असर ख़त्म नहीं हुआ, और दोबारा आए घर में तो एक नया मसला बना हुआ था, दीवार वाला। तो मैं हैरान हो गया कि ये तो परेशानियां ख़त्म होने के बजाय बढ़ रही हैं। तो बस समझ से बाहर है कि मैं क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग इस चीज़ को कुछ समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हम करें तो क्या करें। सारा दिन राफिया लेटी रहती है, और अब तो राफिया बहुत ज़्यादा परेशान है, और पता नहीं क्या होता है राफिया के साथ, अजीब सा होता है। राफिया, तुम खुद बता सकती हो क्या होता है तुम्हारे साथ? अब बताओ। हाँ जी, मेरे करना चला फिरा नहीं जाता, ना मेरे को काम होता है। सारा दिन मेरा यही होता है कि मैं चारपाई ते लेटी ही होवां और खाना ही ना पकावा, खाना खावा ही ना, कहने गल बात ही ना करा। परेशान सी गा, पता नहीं घर देखो पिखड़ा पिया, पहले इस तरह होता ही गंद, कितना गंद पड़ा होया। जिसे इस घर चाहनिया मेरी आवाजारी खली हो वेंदी, मेरे हाथ पे घबराहट हो वेंदी। जब से इस घर में आए हैं ना, हाँ जी, तुम लगता है नए तावीज हुए हैं जी। ऐसा लगता है जी इस घर में दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, घर काम करो का दिल नहीं लगता। सारा दिन, आज सुबह तो सारा दिन चारपाई चाहिए, खाना ही नहीं पक्का, कुछ भी नहीं थे। पे घर देखो गड्ढा गड्ढा मिट्टी, जिथे बोतल, जिथे क्या चीज पे गया। मैं तो हूँ थाकू आख चुकी हूँ, मैं तो मजबूर हो गई हूँ। खुद खाना बना सकते हो तो बनाओ। जितने तक मेरे कण बनता सी मैं बनाती सी, हुण मेरे कण जो नहीं होता, पता नहीं नए तो नए करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मेरे को समझो बाहर है, मेरे को नहीं समझ आती पे। चलो ठीक है जी, इसी बात के साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप हमेशा खुश रहें, और हमारे हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमारे ऊपर रहम करे, करम करे। पता नहीं कितने दुश्मन हैं और कहाँ कहाँ से खड़े हो गए हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे जिन्होंने ये हमें घर बना कर दिया। सब बहन भाइयों को, एक भाई था और बाकी सब बहनें थी। अल्लाह पाक की रहमत हो हमारी बहनों पर, उस भाई पर भी। तो अब ये लोग चाहते हैं कि ये घर भी ना रहे और ये रिश्ता भी ना रहे। मियाँ बीवी तंग हो जाएंगे, आपस में झगड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगी। बस ये चीजें कर रहे हैं ना, तुम तंग हो जाती हो ना, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती हो। मैं ऐसी बात सोच भी नहीं रहा होता और तुम वो बात करती हो। तो ये बीमारी की वजह से होता है। और जो जादू हुआ है वो भी इसी तरह तर्ज का जादू हुआ है। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि भाई इसके गुर्दे फेल हो जाएं और जिगर तक इतने भी खून पैदा ना करे, गुर्दे कमजोर हो वनो, और दिल तक मतपुर गल तक कीता ने, बीबी तक हाई बीबी तक कीता ने, और पागल हो वने, पागल हो वने, पागल हो के मर जाए। हाँ जी, पागल हो के तो मर जाए। ये कितने लोग हैं, पता नहीं कितने लोग आए, मेरे को नहीं समझ आती क्या कौन सारे चीज लभते हैं।